So let's start the revision of international relation uh, current affairs very quickly. So this is for the Indus Water Treaty, the very first thing. तो सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद इंडिया क्या किया है? इंडिया हैज स्टॉप्ड द इंडस वाटर ट्रीटी. So you can see that the statement goes from our foreign ministry that the blood and water cannot flow together. So the Cabinet Committee on Security it hold Indus Water Treaty in abeyance. So Indus Water Treaty में कोई exit clause नहीं है for unilateral abrogation. So for exit करने के लिए we need to duly ratify treaty between the both government. This is the first thing. Now India is invoking the Vienna Convention on Law of Treaties. जिसका तो we are not violating the Vienna Convention on Law of Treaties क्योंकि ये बोलता है कि you can suspend international law if there is a fundamental change of circumstances. So state sponsored terror is that circumstance. So इंडिया इमीडिएट एक्शन क्या होगा कि इंडिया क्या करेगा कि वो जो वाटर फ्लो का डेटा है वो पाकिस्तान को देना बंद कर देगा विच यूजेस फॉर फ्लड वार्निंग्स एंड क्रॉप प्लानिंग. ओके. नाउ बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी को समझ लेते हैं. देयर इन इंडस वाटर ट्रीटी देयर इज एन 80-20 रूल. So the Pakistan get the 80% of water volume. So western rivers are flowing into Pakistan, that IJC in Indus, Jhelum and Chenab, while India gets the 20%, the eastern river Ravi via Satluj. So India has the limited rights on western river that India can use for non-consumptive purpose only, so that you can create hydropower run of the river projects like. So we have created run of river projects like Salal and Baglihar. Okay. So the rivers like Indus and Satluj, so they are the antecedent rivers. So they existed before the Himalayas and cut deep gorges them. Okay. So both originated in Tibet near Lake Mansarovar. So both Indus and Satluj. Now dispute mechanism क्या है कि there are three tier process. There is a permanent Indus commission होगा. There is a bilateral dispute mechanism. Okay. So there is a neutral expert, and the third one is the court of arbitration. Okay. So first of all क्या पूछ सकता है कि all six rivers of the Indus system originate within Indian territory? नहीं. जो झेलम, चेनाब, रावी और व्यास they are originated in India, while Indus and Satluj they originated in Tibet. Okay, so झेलम, चेनाब, रावी, व्यास they originate in India. स्टोरेज का क्या सीन है? सो इंडिया इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम बिल्डिंग एनी स्टोरेज डैम्स ऑन वेस्टर्न रिवर्स. ऐसा नहीं है. सो इंडिया को मिला है 3.60 मिलियन हेक्टेयर मिलियन एकड़ फीट, एमएफ करके बोलता है, तो 3.60 मिलियन एकड़ फीट का स्टोरेज कैपेसिटी परमिट है, बट इंडिया अभी तक केवल उसका 1 मिलियन एकड़ फीट ही यूज किया है. ठीक है. नाउ इंडिया कैन रिवोक द इंडस वाटर ट्रीटी अंडर द वियना कन्वेंशन बिकॉज इट इज सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन. इंडिया इज नॉट, इंडिया पार्टी नहीं है वियना कन्वेंशन का, बट इट यूजेस प्रोविजंस ऑफ द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, ये चीज समझना होगा कि इंडिया वियना कन्वेंशन का पार्टी नहीं है. ठीक है. शेयरिंग ऑफ वाटर डेटा फ्लो इज अ कर्टसी नॉट ए मैंडेटरी ऑफ आईडब्ल्यूटी. तो रेगुलर डेटा एक्सचेंज जो था वो ट्रीटी का ऑब्लिगेशन था ताकि फ्लैश फ्लड ना आए डाउनस्ट्रीम में. ठीक है. नाउ दी मेंस रिलेटेड पॉइंट है कि डेटा एज अ डिटरेंट, कि जो हम लोग वाटर फ्लो का डेटा रोक रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है दैट इज 80% रिलाय ऑन द सिंधुज वाटर. So when we create upper stream dams like Salal on the Chenab River, so it can create the internal frictions in Pakistan. So reduce water flow into Pakistan often triggers Punjab versus Sindh regional tension over canal sharing. तो चोलिस्तान कैनल इशू है कि पंजाब से सिंध में पानी जाता है, तो पाकिस्तान का इंटरनल कोहेजन वीक हो रहा है. तो गंगा वाटर ट्रीटी होने वाला है विद बांग्लादेश विच एक्सपायर्स इन 2026. So India's tough stance on the Indus Water Treaty to all riparians that water sharing is contingent on regional security. ठीक है. गंगा वाटर ट्रीटी 1996 का एक्सपायर होने वाला है. ठीक है. नाउ फास्ट ट्रैकिंग विद द वेस्टर्न ब्रेड. सो इंडिया जो है पाकल डूल जो है, पाकला डूल करके जो एक रिवर है, जो आपका चेनाब रिवर का ट्रिब्यूटरी है, दैट्स कॉल्ड मरसुदार, मारूसुदर. ठीक है. तो मारूसुदर रिवर पे आपका पाकला डूल है. ठीक है. तो उस पे एक प्रोजेक्ट बना रहा है, द कीरू प्रोजेक्ट दैट वी आर क्रिएटिंग, दे आर आल्सो इन चेनाब. ओके.
So there are a lot of projects. There are upcoming like Kiru, Ratle, Pakladul, like this type of projects. So पूछा जा रहा है कि with reference to Indus river system of the following four rivers, three of them pour into one of them which joins the Indus directly. Among the following, which one is such a river that joins the Indus directly? तो इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन करता है सतलज ही, बिकॉज चेनाब भी कर सकता है। चेनाब अमोंग द फॉलोइंग रिवर, रावी ब्यास सतलज में जुड़ता है। चेनाब का झेलम है, चेनाब में जुड़ता है, और वो भी जाके लगता है सतलज में मिल जाता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि बताइए स्ट्रेटेजिकल इम्प्लीमेशन का इंडिया डिसीजन का इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने का, तो हम लोग क्या सोच पा रहे हैं कि भैया पहलगाम अटैक के बाद जो इंडिया जो है टेक्निकल कंप्लायंस से शिफ्ट हो गया है स्ट्रेटेजिक अबेयंस पे। ठीक है, तो देयर इज ए फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांस हो गया है। अब तो इंडिया अपर रिपेरियन स्टेटस होने का फायदा उठा रहा है टू डेटर दी स्टेट स्पॉन्सर टेरर। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है डेटा वेपनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोपॉलिटिकल पावर है कि जो स्टोरेज एंड रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स उसको फास्ट ट्रैक कर रहा है ऑन द वेस्टर्न रिवर्स टू रेगुलेट द फ्लोज। ठीक है, तीसरा है आपका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नामिटी एरा लिंकिंग वाटर शेयरिंग टू द सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, हाउ इट मे स्ट्रेन द रिपेरियन एंड कॉम्प्लिकेट द 2026 रिन्यूअल गंगा वाटर ट्रीटी विद बांग्लादेश। तो कुछ कुछ समझना है हम लोग को लाइक डैम्स के बारे में। तो सो इफ यू सी द डैम्स, so let's understand that what are the dams that we have. So if you see the western flowing river, so Sindhu river तो most of the आपका पीओके से गुजर जाएगा। So we do not have a lot of dams on Sindhu river directly. So झेलम का एक ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा। So we have a किशन गंगा डैम on झेलम का ट्रिब्यूटरी। This we need to understand। ठीक है, अब इसके नीचे आ रही है अपनी बड़ी चेनाब रिवर। तो ये जो चेनाब रिवर है ना भैया, तो ये जो झेलम निकल रही है आपके जम्मू कश्मीर से, और ये जो चेनाब आ रहा है झेलम और चेनाब, तो आपका चेनाब पे बहुत सारा डैम है। क्या क्या डैम है आपका चेनाब पे? सो यू कैन सी एक कीरू डैम है, कीरू डैम है। यू हैव द रातले डैम, यू हैव सलाल डैम, यू हैव बगलिहार डैम, एंड चेनाब का ही एक ट्रिब्यूटरी है मारूसुदर, उस पे आपका पकलाडुल डैम है। ठीक है, so we have a lot of dams in this Chenab river. So first of all कीरो अभी तक बना नहीं है, रातले भी अपकमिंग है। वी हैव फास्ट पेस दैट प्रोजेक्ट। सो वी हैव बगलीहाल डैम आल्सो। सो बगलीहाल डैम जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, बगलीहाल और सलाल डैम, बगलीहाल और सलाल डैम जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। और किशन गंगा और रातले, तो किशन गंगा और रातले पे ही सवाल उठा था। तो बेसिक नाम याद रखना है कि जो किशन गंगा डैम जो किशन गंगा में है, दैट इज वन थिंग। और द चेनाब रिवर पे यू हैव रातले रातले सलाल एंड द बगलीहाल एंड पाकला डुल। ठीक है, जो रावी ब्यास सतलज है, रावी पे वी हैव थीन डैम, वी हैव ब्यास पे पोंग डैम, एंड सतलज पे वी हैव ए भाखरा नांगल डैम। ठीक है, so this we need to remember in context of Sindhu Indus water treaty. Okay, or this is done. So you understood all the dams are in Jammu Kashmir only. Okay, so we need to understand this also. So कीरू रातले सलाल बगला बगलिहार पाकला डूल, ये सारा का सारा ही आपका इसमें है। ठीक है, जो थीन डैम है, ये समझिए, जो थीन डैम है ये पंजाब में है आपका। ठीक है, पठानकोट में। और फिर आपका पोंग डैम जो है वो आपका महाराणा प्रताप सागर जो है, राणा सागर, पोंग डैम ही महाराणा प्रताप सागर, ये बियास डैम है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ब्यास रिवर पे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। थीन डैम ही आपका रंजीत सागर डैम है, ये महाराणा प्रताप सागर डैम जिसको बोलता है, ये पोंग डैम है। ठीक है, रामसर साइट।
रामसर साइड भी है पोंग डैम। भाखरा नंगल तो जान ही रहे हैं का पंजाब में है भाखरा नंगल डैम। ठीक है, भाखरा नंगल हिमाचल में है। कंक्रीट ग्रेविटी डैम सतलज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। सो गोविंद सागर रिजर्वोयर बनेगा। तो आपका जो भाखरा नांगल है और जो पोंग डैम है ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। जो आपका थीन डैम है, जो रंजीत सागर डैम है, वो पंजाब में है, रावी नदी पे। और जो ब्यास और सतलज पे, वो दोनों हिमाचल प्रदेश में है। डन डन है जी। So let's understand the response that we did in response to the Pahalgam attack. Okay. So following an attack in Pahalgam, so India क्या किया? India has executed a multi-domain response from military strikes to economic strikes to digital strikes, everything. सबसे पहले military response that we launched the Operation Sindoor, that 9 targets in 25 minutes using the precision guided munitions like BrahMos और Scalp missiles का यूज़ किया आपने। और 9 टारगेट्स को in the foreign territory we completely ruled out. The second thing is that we freeze all the imports, direct or indirect, suspend all kind of postal links, and invoke the part 3 of IT rules, that we remove all the digital contents, Pakistani content from the OTT platform. ठीक है, ऑल काइंड ऑफ इंपोर्ट्स बंद कर दिए पाकिस्तान से, पोस्टल लिंक्स बंद कर दिए हैं, और आईटी जो पाकिस्तानी कंटेंट हटा दिए हैं। तो इंडिया इज सेइंग दैट वी आर यूजिंग आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर। तो आर्टिकल 51 क्या बोल रहा है यूएन चार्टर का? दैट यू हैव द राइट टू सेल्फ डिफेंस, दैट इफ एनीबडी, इसमें एक प्रोविजन है अनविलिंग या यू कैन से अनविलिंग एंड अनेबल टू डू सो वाला। तो आर्टिकल 51 में है कि भैया आप जब कर दिए कांड तो आप एक बार रिपोर्ट कर दीजिए यूएनएससी को इमीडिएटली। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में बात हो रहा है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? एक तरह से सीज फायर लाइन जो कराची एग्रीमेंट के बाद बना था, दैट इज अराउंड 1949। और उसके बाद एलओसी बन गया वो आफ्टर दिस शिमला एग्रीमेंट। तो ये कोई बॉर्डर नहीं है, इट इज लाइक होल्डिंग लाइन फॉर बोथ मिलिट्रीज। ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में समझा जाए तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बना था आपका 1989 में बाय G7 नेशन। तो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी इज प्लेनरी। ओके, 3 टाइम्स ईयर में मिलता है। ठीक है। तो इंडिया मेंबर है एफएटीएफ का भी, इंडिया मेंबर है एशिया पैसिफिक ग्रुप का भी। पाकिस्तान एफएटीएफ का मेंबर नहीं है, पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप का मेंबर है। ठीक है। सऊदी में अरेबिया रिसेंट मेंबर बना है एफएटीएफ का, बट जीसीसी जो कंट्रीज है वो एफएटीएफ का पार्ट नहीं है। पहला है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान एयरबेस को नहीं, केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ है। A51 जो है हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस, हाँ राइट टू सेल्फ डिफेंस है, बट यूएनएससी को रिपोर्ट करना होगा। डी हाइफिनेशन क्या होता है? डी हाइफिनेशन एक इंडिपेंडेंट परसेट है जिसमें आप यू नीड टू टाइज विद द राइवल्स, कि सेपरेट मतलब एक का रिलेशनशिप विल नॉट डिक्टेट विद अदर। सो हम लोग बोल सकते हैं अनविलिंग और अनेबल टू डू। तो ये एक इंटरनेशनल डॉक्ट्रिन है जिसमें यू कैन जस्टिफाई योर स्ट्राइक्स इन दी other sovereign nation by saying that either that country is unwilling to stop or unable to do so, that require my intervention in your country. So the second thing is the red teaming. Now the red teaming is that uh, red teaming, it means to stimulate enemy perspectives. So महाभारत विदुर है कि the voice of caution and strategic foresight means it does not you do the reactive measures, you do the proactive measures. ठीक है। इकोनॉमिक डीकपलिंग एज डिटरेंस, तो हम लोगों ने इंपोर्ट बंद कर दिया है। इंडियन कोस्ट में अब पाकिस्तान फ्लैग शिप नहीं आ सकता है। सो टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर। सो इफ यू सी वेरियस ऑपरेशंस, सो इट स्टार्ट्स विथ 1965 का ऑपरेशन रिडल। तो ऑपरेशन रिडल आपका हुआ था ऑपरेशन जिब्राल्टर के अगेंस्ट में, ये समझ लीजिए। उसके बाद बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में आपका कैक्टस लिली हुआ था, ऑपरेशन कैक्टस लिली। एंड कराची में जो अपना नेवी वॉरफेयर हुआ था दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन ट्राइडेंट पाइथन। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर को हम लोगों ने एक्वायर किया था विद द ऑपरेशन मेघदूत। देन देयर इज एन ऑपरेशन विजय सफेद सागर। नाउ दिस सफेद सागर is it was like in 1999 and is during the Kargil war only. Meghdoot and Safed Sagar. देयर इज एन ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था बालाकोट पे आफ्टर पुलवामा अटैक। ओके, आफ्टर पुलवामा अटैक
देयर इज अ पुलवामा अटैक, देयर इज अ पहलगाम अटैक, देयर डिफरेंट अटैक्स। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था 2019 में। ऑपरेशन अजय, अजय में क्या हुआ था कि हम इसराइल और हाँ पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में वहां से इंडियंस को रिपाट्रिएट किए थे ऑपरेशन अजय में। देन देयर इज सद्भाव, ऑपरेशन सद्भाव में क्या हुआ था कि टाइफून यागी जब आया था तो साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया फिलीपींस में मदद पहुंचाए थे। देन देयर इज ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा में क्या होता है, ये म्यांमार थाईलैंड में मदद पहुंचाए थे ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। तो ऑपरेशन ब्रह्मा और ऑपरेशन सद्भाव, ब्रह्मा सद्भाव आपका ये वाला ह्यूमैनिटेरियन मिशन है, जबकि अजय आपका एक्सपर्टेशन मिशन है, और फिर बंदर वाला सब तो आपका ये है। ठीक है, तो भैया एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया जाए ये विदुर वक्ता कॉन्सेप्ट का भी। तो विदुर वक्ता इज नथिंग बट एन मॉडल है ये, दैट इज यूज्ड इन द आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला। इसमें क्या होता है कि देयर इज टू टीम्स, that is a red team and there is a blue team. The red team that works like your plan, that works like your think like your adversaries, and it challenge your military plans. So it's kind of like sand model exercise or the paper based exercise, like the war stimulations kind of thing. Okay, तो FATF और ये इंटरनेशनल बॉडी में एक चीज ध्यान दे दिया जाए कि जो FATF है, दैट इज अ डिफरेंट बॉडी जिसका मैंडेट 3 मैंडेट है। पहला है मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना, और टेरर फंडिंग को ये लोग 2001 में इंक्लूड किया है। ठीक है, अगर किसी को ग्रे लिस्ट में डालना है FATF का, तो जो कोई मेंबर नेशन है वो नॉमिनेट करेगा, और जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, प्लेनरी है FATF का, जो साल में 3 बार बैठता है, वो अप्रूव करेगा। तो कोई देश FATF का ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। FATF करेंटली 40 मेंबर है, और उसमें पाकिस्तान नहीं है। एंड द सिमिलर काइंड ऑफ FATF काइंड ऑफ बॉडी इन इंडिया और द एशिया रीजन इज एशिया पैसिफिक ग्रुप फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। सो ये 42 मेंबर्स इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसका भी फोकस सेम है फॉर इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, ये GCC मेंबर है आपका FATF का। GCC जो आपका कंट्रीज है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, छः नेशन है इसमें। तो सऊदी अरेबिया FATF मेंबर है, पर जो GCC का 5 मेंबर है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और UAE, ये लोग आपका FATF का मेंबर नहीं है, बट GCC इज ए मेंबर ऑफ FATF। ये नुआंस पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, देख रहे हैं दुश्मन सबको। तो अभी चाइना एक मीटिंग किया है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ इन कुनमिंग टू रिवाइव दिस लाल मोनिन हाट एयरबेस। सिलीगुड़ी के सामने ये वर्ल्ड वार 2 का समय का एयरबेस है। ठीक है, तो टेंशन वाला बात है। 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पाकिस्तान का उतना जरूरी नहीं है, बस जान लेना है कि उन लोगों भी हम लोग का देखा देखी एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बना लिया है, और उन लोगों भी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, सुप्रीम कोर्ट का एबिलिटी वहाँ कम, मतलब सुप्रीम कोर्ट वहाँ कमजोर हो गया है, और एक ये बना लिया है लोग। ठीक है, और एक चीज समझो कि जो IMF कैसे काम करता है, IMF का 2 एग्रीमेंट के बारे में बात हुआ है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो 2 टाइप का। तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट होता है। ठीक है, अगर आपको कुछ टेम्पोरेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया है तो आप स्टैंड बाय एग्रीमेंट करेगा। और जो आपका एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, दैट नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो आपका मीडियम टर्म या स्ट्रक्चरल बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू होगा तब लगभग 1 से 2 साल के लिए आपको दिया जाता है स्टैंड बाय एग्रीमेंट, और आपका 3 से 4 साल लगेगा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी देने के लिए। ठीक है, तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट का फोकस होता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन करने का, और कम्प्रहेंसिव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इसका गोल है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का। इसमें आपका लगभग 5 साल तक आपको रिपेमेंट करना है, इसमें आप 10 साल तक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया, स्टैंड बाय एग्रीमेंट और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी भी समझ लिया। सिख पिलग्रिमेज के बारे में समझ लिया जाए कि ननकाना साहिब जो पाकिस्तान में है, ठीक है, जो पंजाब पाकिस्तान वाला है, दैट इज दी बर्थ प्लेस फॉर गुरु नानक देव। 1469 में वहाँ पे गुरुद्वारा जन्म स्थान है। ठीक है, और 1929 में एक इवेंट हुआ था जो आपका ननकाना साहिब में ही हुआ था, वेयर देयर वाज मसाकर ऑफ द अकाली सिख्स, जो वहाँ के ननकाना साहिब के जो करप्ट महंत थे उनके खिलाफ लड़ रहे थे। तो इससे क्या हुआ, सिख गुरुद्वारा एक्ट आया 1925 का। और जो ये आपका
क्या बोलते हैं उसको, शिरोमणि गुरुद्वारा पंथ कमेटी ऐसे करके जो है वो बना, ठीक है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है आपका डेरा बाबा नानक जो है इंडिया का, और गुरुद्वारा दरबार साहिब जो पाकिस्तान का है, वो दोनों को कनेक्ट कर रहा है करतारपुर साहिब। तो करतारपुर डेरा बाबा इंडिया का, और दरबार साहिब वहाँ पाकिस्तान का, दोनों को कनेक्ट करा। तो करतारपुर गुरु नानक के द्वारा ही फाउंड किया गया था, और अपना जीवन का आखिरी समय करतारपुर में ही रहते हैं, ठीक है। तो करतारपुर का ही हिस्ट्री है। जन्म हुआ था आपका ननकाना साहिब में, याद रखना है। अब एक ऑपरेशन महादेव याद रखना है। ऑपरेशन महादेव आपका एक काउंटर टेरर ऑपरेशन है, जो कि ये लिद्वास वाला रीजन में हुआ था। तो डाचीगाम नेशनल पार्क आ जा रहा है। तो डाचीगाम नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में है, याद रखना है। इसमें हंगुल मिलता है। हंगुल आपका एक तरह से कश्मीरी स्टैग है, वो वल्नरेबल है। वहाँ मस्क डियर भी मिलता है जो इंडेंजर्ड है। स्नो लेपर्ड मिलता है जो वल्नरेबल है। और कश्मीरी ग्रे लंगूर मिलता है। 4 स्पीसीज मिलता है, ग्रे लंगूर, स्नो लेपर्ड, और आपका कश्मीरी स्टैग मिल जाएगा। कश्मीरी स्टैग नहीं पूछेगा, हंगुल फेमस है, हंगुल याद रखिएगा, ठीक है। और मुड्रिके आप समझ लीजिए, मुड्रिके जो है पाकिस्तान में दैट वाज लाइक हिस्टोरिकली विद द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एलईटी। ऑपरेशन सिंदूर में इसको हटाया, गिराया गया है। और ऑपरेशन महादेव आपका डाचीगाम वाला एरिया में चला है, ठीक है, ये याद रखिए। सऊदी पाकिस्तान पैक्ट कर लिया है कि भैया आप पे जो मार होगा मेरे ऊपर माना जाएगा, ठीक है। बट बीइंग पाकिस्तान एज ए न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, तो इट्स द बिगेस्ट ब्लो टू द ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो पाकिस्तान पहले भी ट्रूप्स भेज चुका है। तो वी नीड टू फाइंड आउट द डिहाइफिनेशन, वी नीड टू डू लाइक, सऊदी जो है सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अपना, अपन डायस्पोरा भी वहाँ बहुत है। तो सो वी नीड टू कीप दिस रिलेशनशिप वेरी क्वाइटली। सो न्यूक्लियर आर्म्ड वेस्ट एशिया का थ्रेट आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि करतारपुर साहिब गुरु नानक का बर्थ प्लेस है? नहीं, वो उनका डेथ प्लेस है। द स्टैंड बाय एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के लिए होता है ना, ये शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के लिए होता है। न्यूक्लियर कंट्रोल क्या बोल रहा है भैया, पाकिस्तान रिमेन्स द कमांड सुप्रीम कमांडर, ना ना प्रेसिडेंट नहीं है भैया, ये लोग चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाया है, जो ही उसी के पास है सारा कंट्रोल, ठीक है। आर्मी के पास पूरा कंट्रोल है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आईएमएफ का जो गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक है, वो बोल रहा है कि भैया फिजिकल कंडीशन से एडमिनिस्ट्रेटिव वन में चला गया है। मतलब जो आईएमएफ जैसे ही गवर्नेंस जीसीडी को इंटीग्रेट किया है एज ए मैंडेटरी प्री कंडीशन फॉर डिसबर्समेंट, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा 7 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पाकिस्तान को किस आधार पे दिया गया, इसी आधार पे दिया गया, ठीक है। तो जैसे कि ट्रेडिशनल फिजिकल कंडीशन क्या होता है कि हम लोग टैक्स देखते हैं, सब्सिडी देखते हैं, जीसीडी क्या देखता है, जीसीडी टारगेट द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक फेलियर। तो क्या है, करप्शन और इंस्टीट्यूशनल डीके, ओके। तो ये एक्नॉलेज करता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन को इज टेम्परेरी विदाउट स्ट्रक्चरल ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो कोई पूछ देगा भैया ये जीसीडी क्या है, जीसीडी जो है आपका गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक है। ये बेसिकली ये आईएमएफ का एक तरह से क्या बोलिएगा डायग्नोस्टिक टूल है। तो ये कंडक्ट हुआ था एट द रिक्वेस्ट विद द सपोर्ट ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान में हुआ जीसीडी, कि भैया पता चले कि क्यों, व्हाट आर द रूट कॉज बिहाइंड द योर फिजिकल कंडीशन। तो अब जो है आईएमएफ जस्ट योर आपका फिजिकल कंडीशन नहीं देख रहा है, अब वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन भी देख रहा है, जैसे कि जीसीडी देखते हुए, ठीक है। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, ठीक है। बाय डिमांडिंग द पब्लिकेशन ऑफ जीसीडी रिपोर्ट, आईएमएफ क्या बनाया, एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बनाया कि सिविल सोसाइटी को मॉनिटर करना होगा कि ये ऐड कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। से थर्ड थिंग है जी, सच डायग्नोस्टिक अलाउ इंटरन बॉडीज टू इंटरफेयर विद द नेशनल इंटरनल गवर्नेंस, ठीक है, ये चीज हो गया। इकोनॉमिक्स में बोल सकते हैं जीसीडी रिप्रेजेंट होलिस्टिक रिफॉर्म वाइल फिजिकली इंक्लूसिव, it is a necessary tool to ensure that global capital is used for development rather than systemic corruption। ये चीज जरूरी है जीसीडी का। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सरक्रिक। तो सरक्रिक के बारे में क्या जानना है, तो बेसिकली ड्रोन एक्टिविटी के कारण सरक्रिक न्यूज़ में आ गया है।
ठीक है, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद पाकिस्तान क्या किया है कि जो ये तरह के ड्रोन्स को छोड़ा है लेह से सरक्रिक तक, ठीक है। तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर वार्निंग इशू किया है कि जो सरक्रिक में विल मेट बी जो इस तरह से किया जाएगा दैट वुड अल्टर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। मिलिट्री बिल्डअप हुआ है वो याद देने वाला बात है कि रिवील्स रिसेंट पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरक्स एट राहडे पीर एंड बंकर्स विद इन 2 किलोमीटर्स ऑफ क्रिक्स बैंक। तो सरक्रिक है क्या, इस लाइक 96 किलोमीटर टाइडल स्टोरी है रन ऑफ कच्छ में। सरक्रिक का इमेज सो इफ यू सी सरक्रिक, तो ये ग्रीन लाइन है और रेड लाइन है, यही बेसिक आपका जो गुजरात का सिंध और मतलब गुजरात और सिंध का बीच में जो बॉर्डर है दैट इज दी दिस 96 किलोमीटर टाइडल एस्चुरी, ठीक है। अब पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि द इंटायर क्रिक बेस्ड ऑन 1914 का बॉम्बे एग्रीमेंट रेजोल्यूशन हुआ था, ठीक है ना। तो देखो ये देयर इज ए ग्रीन लाइन, तो ये हुआ था, ये ग्रीन लाइन हो रहा है पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, तो ये बॉम्बे रेजोल्यूशन के द्वारा हुआ था। इंडिया बोल रहा है कि थालवेग प्रिंसिपल फॉलो करेंगे कि जो बॉर्डर होगा वो अगर कोई नेविगेबल वाटरवे है उसका मिड चैनल होना चाहिए, ठीक है। सो इंडिया बोल रहा है कि क्रीक इज नेविगेबल ड्यूरिंग द हाई टाइड, इसलिए थालवेग अप्लाई हो रहा है। पाकिस्तान डिस्प्यूट बोल रहा है कि नहीं, ये ठीक है, नहीं है। तो मुंद्रा और कांडला पोर्ट सामने ही है, तो अगर क्रीक पे जिसका कंट्रोल होगा वो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन उसका बढ़ जाएगा और वास्ट ऑफशोर ऑयल गैस है, ठीक है। तो सर क्रीक डिस्प्यूटेड एरिया है ही। अब दूसरा है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक और आईएमएफ का बात हो जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक $800 मिलियन का पैकेज पाकिस्तान को दे दिया है, ठीक है। इसमें $300 मिलियन का पॉलिसी बेस्ड लॉन्स है और $500 मिलियन का गारंटी लॉन्स है, ठीक है। इंडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है, घट रहा है, 9.2% पे आ गया है, तो इस तरह से लोन क्यों मिल रहा है। तो हम लोग को ये नहीं समझना है, हम लोग को समझना है बैंक का क्या है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में फाउंड हुआ है, आईएमएफ पुराना है, ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन है 1944 का। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस में है, आईएमएफ का वाशिंगटन में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का काम है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना एशिया पैसिफिक रीजन में, और आपका आईएमएफ का काम है और आपका आईएमएफ का काम है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सपोर्ट देना, ठीक है। तो कंट्री का मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बने रहे, ये ध्यान देना आईएमएफ का काम है। इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक का फाउंडर मेंबर है। इंडिया का 8th लार्जेस्ट कोटा है, 2.76% लगभग इन आईएमएफ में, ठीक है। यहाँ पे वोटिंग मिलता है कैपिटल शेयर के हिसाब से, यहाँ पे आपका एचडीआर के हिसाब से वोटिंग राइट्स है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू कैपिटल शेयर, ठीक है। आईएमएफ का 16 जनरल रिव्यू मीटिंग हुआ था, ठीक है। आईएमएफ जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ये बता रहा है कि इंडिया 6.6% से ग्रो कर रहा है वेल वर्ल्ड इज ग्रोइंग एट 3.3%। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये सब इसका ही है। तो थालबर्ग प्रिंसिपल क्या करता है कि जो वाटर बाउंड्री है अगर दो कंट्री के बीच में, तो जो तुम्हारा बॉर्डर होगा वो डीपेस्ट नेविगेबल चैनल से जाएगा, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का ओनरशिप एलिजिबल टू, तो ये जो है आपका नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज आर मेजर शेयर होल्डर्स। सिर्फ पूछा जाएगा कि क्या सिर्फ मेंबर कंट्री के लिए है, क्या शेयर होल्डर्स के लिए है, नहीं ऐसा नहीं है। जो नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्री है वो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मेंबर है। एक प्री रिक्विजिट वाला सीन है कि अगर आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर आना है तो आपको आईएमएफ का मेंबर बनना होगा पहले, ठीक है। क्या लिख रहा है, डिफेंस मिनिस्टर रिमार्क किया है कि वन रूट टू कराची पास थ्रू सर क्रिक। इंडिया डॉक्ट्रिन बोला है कि इंडिया अब सर क्रिक को डिफेंसिव तरीके से नहीं ले रहा है, इंडिया पूरा ऑफेंसिव तरीके से खेलेगा, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ कोस्टल फ्लैंक, तो सर क्रिक डिस्प्यूट को आप 26/11 मुंबई अटैक से जोड़ सकते हैं हम लोग, कि लाइक नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी है कि वाटरवेज के थ्रू आतंकवादी ना आ जाए, ठीक है। देयर इज ए फिजिकल मोरल हैजार्ड, ठीक है। यूज पाकिस्तानी एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन एज ए केस स्टडी। इसमें हम लोग को बोलना होगा कि भैया
जो कि फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करना होगा कि जो रिसिपिएंट कंट्री है वो फंड्स को यूज करके डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। तो आप इंटरनेशनल फंड्स का किस तरह से यूज हो रहा है, ये एक नुआंस पॉइंट है। तो जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ का है, सही है। इन द आईएमएफ द वोटिंग पावर इज डिटरमाइंड बाय इट्स कोटा, सही है। वन टू दोनों सही है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? सर्किल डिस्प्यूट इज ऑफन कॉल्ड कार्टोग्राफिक क्वेरल येट इट होल्ड्स इमेंस स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। यह बात तो सही है, क्योंकि जब आप देखिएगा सर्करिक को, भारत पाकिस्तान के बीच में एक 96 किलोमीटर का टाइडल एस्चुरी है, ठीक है। बट दिक्कत हो रहा है कि मैरीटाइम इंटरेस्ट है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहला चीज कि जिसकी सर्करिक का जो प्रॉक्सिमिटी है कराची से है, ठीक है। तो अगर सर्करी का कंट्रोल इंडिया के पास होगा तो इंडिया इज ए वेरी ऑफेंसिव एक्सिस, ठीक है। बट जो पाकिस्तानी मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, ड्रोन बेस बना रहा है, बंकर्स बना रहा है एट दैट साइड, तो ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद में, ठीक है। तो कोस्टल सिक्योरिटी के लिए इंडिया के साइड से जरूरी है, वो पाकिस्तान के साइड से, क्योंकि वहां से सामने आपका ये है, क्या बोलते हैं, कराची है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भैया आप आप लोग घुसा दीजिएगा आतंकवादी, ठीक है। ड्रग स्मगलिंग उसके लिए इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है कि भाई जो डिलिमिटेशन होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो क्रीक है, रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है, तो ग्लोबल इकोनॉमी जो जो कच्छ का इकोनॉमी है वो क्रीक से चल रहा है, अच्छा खासा वहाँ ही हो रहा है, तो ठीक है। तो हम लोग थर्ड पार्टी इंटरवेंशन मना कर दिए हैं अंडर द शिमला एग्रीमेंट। तो सर क्रीक जो है बायलैटरल टेक्निकल इशू है। पाकिस्तान ड्रोन इंक्रीजन बढ़ा रहा है। इंडियाज हाइड्रोलॉजिकल रियलिज्म मस्ट बी बैक्ड बाय एडवांस काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है। So let's understand the relation of our relation with Bangladesh. तो बांग्लादेश के साथ जब रिलेशन समझना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट गंगा गंगा वाटर एग्रीमेंट। तो गंगा वाटर एग्रीमेंट एक्चुअली 1996 में हुआ था। इट इज सीकिंग फॉर द रिन्यूअल इन 2026। तो शेख हसीना के टर्म्स में हुआ था। तो अराउंड जो आपका वी शेयर द लार्जेस्ट बॉर्डर विद द बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में अराउंड 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स है, ठीक है। तो बांग्लादेश इज पिचिंग फॉर एडिंग वाटर शेयरिंग फ्रॉम मोर 14 रिवर्स। तो ये है, अभी रिन्यूअल का बात चल रहा है। सेकेंड चीज है कि इंडिया बांग्लादेशी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है विया लैंड पोर्ट्स, ठीक है। तो लैंड पोर्ट्स के थ्रू जो बांग्लादेशी इंपोर्ट्स हो रहा था, वो रोक दिया गया है, ठीक है। और मतलब क्या-क्या हो रहा है कि जो इंपोर्ट हो रहा था बांग्लादेशी गारमेंट का, सारे लैंड पोर्ट से रोक दिया गया है। और जो एक्सपोर्ट हो रहा था लैंड पोर्ट्स के थ्रू इन त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, कुछ-कुछ गुड्स के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मतलब अगर आपको अभी बांग्लादेश से इंपोर्ट करना है गारमेंट्स को, तो 2 ही जगह से आ सकता है, वाया कोलकाता और दी मुंबई पोर्ट, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ क्या-क्या बैन किया गया है? रेडीमेड गारमेंट्स को बैन कर दिया गया है। फ्रूट, जूसेस, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सबको बैन किया गया है। फिश, एलपीजी, एडिबल ऑयल, ये सब जा सकता है, ठीक है। बांग्लादेश भी रेसिप्रोकल एक्शन लिया है कि वो इंडिया का जो राइस एक्सपोर्ट है, तो उसको बैन किया है। तो बांग्लादेश क्या किया है? तो बांग्लादेश आपका ये जो हिली और बेनपुल जो है आईसीपी से, यहाँ से राइस एक्सपोर्ट ये भी लैंड रूट से बैन कर दिया है, ठीक है। तो दिक्कत हो रहा है आपको नॉर्थ ईस्ट वालों को कि भैया, एक तो बांग्लादेश को तो दिक्कत होगा ही कि जो बांग्लादेशी गुड नॉर्थ ईस्ट मार्केट में पहुंच रहा था यूजिंग द लैंड पोर्ट्स, वो अब रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो बांग्लादेशी एक्सपोर्ट को हर्ट होगा। एट द सेम टाइम नॉर्थ ईस्ट को भी दिक्कत होगा बिकॉज दे आर गेटिंग चीपर बांग्लादेशी गुड्स थ्रू दैट लैंड रूट। अब बांग्लादेश का जो ट्रेड है नेपाल भूटान के साथ, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये समझना होगा कि साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अपना बांग्लादेश ही है। और इंडिया भी बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। टोटल बायलेटरल ट्रेड अराउंड $14 बिलियन का है और इंडिया का सरप्लस है, ठीक है। अब क्योंकि लैंड रूट से रोक दिया गया है, तो आपका जो कोलकाता वाला है, आपका कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, ये आपका लाइफलाइन हो गया है, ठीक है। तो समझा गया कि भाई गंगा का बियॉन्ड भी बात हो रहा है।
सिर्फ गंगा का एग्रीमेंट नहीं है, 14 मोर रिवर के लिए बात हो रहा है, ऐसे 54 रिवर है, ठीक है। तो इंडिया एक जॉइंट फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप करना चाह रहा है, ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा है। तो रिस्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है? ताकि अपना जो इंडियन जूट इंडस्ट्री है वो, क्योंकि इंडिया पहले भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा चुका है बांग्लादेश के, क्योंकि बांग्लादेश का जो जूट है वो दैट इज हेवली सब्सिडाइज्ड, तो इंडियन मार्केट में वो सस्ता आने की वजह से इंडियन जूट इंडस्ट्री को दिक्कत हो रहा है। दैट्स व्हाई द इंडियन गवर्नमेंट earlier placed Indian like land dumping duties, and after that it restricted because the land borders are porous. Okay, it's very difficult to control. नाउ द सेकंड थिंग इज द सिक्योरिटी इंस्पेक्शन अच्छा से हो सके, सेंट्रलाइज हो सके इसलिए। और बांग्लादेश भी रिटेलिएट किया है कि इंडिया का जो राइस को थ्रू लैंड पोर्ट्स बेनापुल में, ठीक है, तो हिली और बेनापुल आपका लैंड पोर्ट है वेस्ट बंगाल में। तो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट होगा आपका, क्योंकि अगर हम लोग लैंड पोर्ट को बंद किए हैं, अगरतला वाला, डाउकी वाला, आपका ये सुतरकंडी वाला, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दिक्कत होगा, सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा, ठीक है। और उसके बाद गंगा वाटर ट्रीटी हो गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड समझ गए। इंडिया में जूट कहाँ कहाँ हो रहा है? वेस्ट बंगाल, बिहार में, असम में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, ऊपर त्रिपुरा मेघालय में भी हो रहा है, ठीक है, देख लीजिए, त्रिपुरा मेघालय में भी हो रहा है जूट। तो हाइड्रो डिप्लोमेसी समझना होगा कि भैया जो इंडिया का रोल एज ए रिस्पॉन्सिबल अपर रिपेरियन है, कि जो हम लोग फ्लड डाटा शेयर कर रहे हैं, ठीक है, देयर इज ए लैंड सी ट्रेड ऑफ, कि जो सी पोर्ट रिस्ट्रिक्शन है, इससे क्या होगा कि दे इंक्रीज द इकोनॉमिक डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हर्ट कर सकता है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लेस इंटीग्रेटेड भी कर सकता है, समझ गए? तो ये एक लैंड सी ट्रेड ऑफ है। हाँ, नॉन टेरिफ बैरियर के बारे में समझिए कि जो मैंडेटरी इंस्पेक्शन है और पोर्ट स्पेसिफिक रूल्स है, इज कंसिडर एज ए नॉन टेरिफ बैरियर, ठीक है। तो दे आर यूज एज डिप्लोमेटिक लीवर्स ड्यूरिंग नेगोशिएशन, ठीक है। So let's understand the game that is happening with our friend Afghanistan. So अफगानिस्तान के साथ जो कर रहे हैं हम लोग, that is the study of strategic pragmatism. Means we are not officially recognizing any terror efforts, but we need to be aware of the we need to take the pragmatic approach, ठीक है। अब आइसोलेशन से इंगेजमेंट की ओर जा रहा है, ठीक है। नाउ सबसे पहले है रसिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट, ठीक है। तालिबान को हटा दिया गया है बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट से। 1990s में नॉर्दर्न अलायंस को बैक किया था, ठीक है। चाइना का क्या है? चाइना ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बट तालिबानी अम्बेसडर को रखा है चाइना में, ठीक है। इट्स लाइक ए स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस, कि ताकि वो बॉर्डर में मिनरल और बॉर्डर इंटरेस्ट ये हो सके। इंडिया भी इज लाइक यू कैन से टेक्निकल मिशन है, मेंटेन करके रखा है। अब इंडिया विच वाज अपग्रेडेड टू ए फुल फ्लेजेड एम्बेसी, ठीक है। अभी तक हम लोग फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं रखे हैं, बट वी हैव द एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेट्स, लाइक उनका मुफ्ती नूर अहमद नूर यहाँ पे है, एंड आवर करण यादव इज इन दी इंडिया सिटीजन, वी हैव फंक्शनली रिकॉग्नाइज, ओके। अब नाउ टॉक्स अबाउट द माल न्यूट्रिशन इन अफगानिस्तान। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है अफगानिस्तान का लाइफलाइन है, बिकॉज चाइल्ड माल न्यूट्रिशन हिट्स क्राइसिस लेवल्स, ठीक है। तो इंडिया मेंबर है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, ठीक है। तो इंडिया सपोर्ट करता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम थ्रू ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर चाहबार जरांज देलाराम रूट। तो यही तो इंडिया का रूट था कि इंडिया का पोर्ट से यहाँ चाहबार पोर्ट में जाएगा, चाहबार से होते हुए ये दिस इज द जरंज एंड देलाराम। तो जहंज देलाराम रूट से जो आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉरिडोर को बाईपास करने के लिए। तो इंडिया का क्या है? ड्राई पोर्ट डिप्लोमेसी है, कि सबसे पहला तो इंडिया ड्राई पोर्ट बना रहा है ये निमरूज प्रोविंस के तरफ, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि इंडिया का क्या है। इंडिया का पहले दो अप्रोच था। पहला अप्रोच था कि ये चाहबार से ले जाएंगे, इस रूट से, देखिए चाहबार से यहाँ से होते हुए डाल क्या नाम था भाई, चाहबार से होते हुए जरंज, जरंज से डेलाराम, ठीक है। चाहबार से डिरंज, डिरंज से दिलाराम, ये रूट था, ठीक है। अब इंडिया बोल रहा है कि ये जो आपका निमरुज प्रोविंस है वहाँ पे ड्राई पोर्ट बनेगा, ठीक है, ताकि वहाँ से अफगान का प्रोमोग्रेनेट ही सबको एक्सपोर्ट किया जा सके, ठीक है।
एक सहतूत डैम बना रहा है, ठीक है, इंडिया, मैदान रिवर पे। तो काबुल रिवर का टेरिटरी है, ठीक है, लाइक इफ यू सी दिस काबुल रिवर पे, यहाँ पे आपका सहतूत डैम बन रहा है, ठीक है। तो सहतूत डैम या ललंडे डैम बोले तो सहतूत डैम इज एसोसिएटेड विथ मैदान रिवर। मैदान रिवर आपका काबुल का ट्रिब्यूटरी है, और काबुल अपने सिंधु का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये चीज समझना है। और काबुल रिवर बेसिन समझिए कि इट इज द ओनली रिवर सिस्टम ऑफ अफगानिस्तान दैट एम्प्टीज इनटू इंदुज, ठीक है। ये सिंधु में जाता है ये पानी, ठीक है। तो कोई भी डैमिंग यहाँ बनता है तो वो पाकिस्तान का जो खैबर पख्तून वाला रीजन है वहां पे दिक्कत करेगा, ठीक है। चाइना नहीं है, रसिया है। और काबुल जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सिंधु का, ये अटक में ज्वाइन करता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अटक में काबुल रिवर सिंधु में ज्वाइन करता है, ठीक है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिपेंडेंट एनजीओ नहीं है, ये आपका यूएन बॉडी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनाया है 1961 में, ठीक है। ये जो डेलाराम जरंज हाईवे है, बीआरओ बनाया है 2009 में, ठीक है। अब रिकॉग्निशन वर्सेस इंगेजमेंट, तो इंडिया प्रेगमेटिक इंगेजमेंट में शिफ्ट कर दिया है। अभी फुल एम्बेसी स्टार्ट हो गया है। तो इंडिया एक्सेप्ट कर लिया है तालिबान एज ए डी फैक्टो रियलिटी टू प्रिवेंट सिक्योरिटी वैक्यूम, ठीक है, दैट कुड बी फाइल्ड बाय हॉस्टाइल स्टेट एक्टर्स, ठीक है। हाइड्रो डिटरेंस है कि भाई सहतूत डैम जो बन रहा है मैदान रिवर पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी आप बोल सकते हैं। सहतूत रिवर, सहतूत डैम याद रखिए, ठीक है। काबुल का प्रोजेक्शन है कि वाटर खत्म हो जाएगा काबुल रिवर में बाय 2030। तो सहतूत प्रोजेक्ट इज लाइक ए ह्यूमैनिटेरियन नेसेसिटी है, तो पब्लिक गुडविल भी मिलेगा अफगान गवर्नमेंट। सबसे पहला वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर बॉर्डर हिस्ट्री। तो तो इंडिया चाइना जो बॉर्डर है दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ द मंचू फ्रॉम द चाइनीज टेरिटरी एंड फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, ओके। So after independence, India insisted for the border based on British era maps, but without actual control on the ground. तो इंडिया का कंट्रोल नहीं था। तो चाइना बिल्ट ए हाईवे थ्रू एक्साई चीन टू कनेक्ट जिनजियांग विद तिब्बत एंड ऑक्यूपाइड इट। देख रहे हैं इनका काम, क्योंकि इंडिया मैप तो दिखा रहा था ब्रिटिश ब्रिटिश टाइम का, बट इंडिया डू नॉट हैव द ग्राउंड प्रेजेंस, देखो ग्राउंड प्रेजेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। तो स्वैप प्रपोजल अगर बात किया जाए तो 1960 में क्या हुआ कि जो जो इनलाइ थे उन्होंने एक स्वैप प्रपोज किया। वंस दे हैव कैप्चर्ड आवर अक्साई चीन, उसके बाद क्या हुआ कि बोला गया कि चाइना वुड रिकॉग्नाइज द इंडिया क्लेम इन द ईस्ट, जो मैकमोहन लाइन के अराउंड है अरुणाचल के, और इंडिया रिकॉग्नाइज द चाइना इन द वेस्ट। सो जो मैकमोहन लाइन है दैट इज द ब्रिटिश लाइन। सो इफ यू आर accepting the British line at the eastern side, why you are not accepting at the western side? So the India recognized China's in the west, Xi Jinping. So this refusal led to the 1962 war. This is the primary cause. So जो swap proposal था जो इन लाई के समय, this is the primary reason. Second हुआ ऑपरेशन फाल्कन। ऑपरेशन फाल्कन 1986 में हुआ ड्यू टू वांगडुंग क्राइसिस, ओके। तो वांगडुंग क्राइसिस में क्या हुआ था कि जो अपने जनरल थे के सुंदर जी, उन्होंने एक ब्रिगेड को बॉर्डर पे किया। तो जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हुआ था, इसके चाइना सरप्राइज हुआ दैट दे कम इनटू बैकफुट एंड राजीव गांधी विजिटेड एंड रिसेटिंग द टाइज। सो एक चीज हम लोग को समझना होगा कि दैट DF-IC जो ICBM है, जो आपका इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका रेंज 20,000 किलोमीटर बताया जा रहा है। So that is one thing, and DF-61 is like land-based your intercontinental ballistic missile है, जो means like चाइना के पास precision strike development है, ठीक है। तो this is a kind of development, like let me clarify again। तो क्या हुआ कि आज़ादी के बाद जब चाइना क्या किया कि जो आपका अक्साई चीन वाला एरिया है, जिनजियांग से तिब्बत जाने के लिए दे पास थ्रू द इंडियन बॉर्डर्स, ओके। अब क्या हुआ कि इंडिया भी सोचा कि कुछ तो दिक्कत चल रहा है, तो पर इंडिया देखो भाई, मैकमोहन लाइन ड्रॉ हुआ था इंडिया और तिब्बत के बीच में। तो इंडिया वांट्स दैट कि जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है, इवन दो जो चाइना ऑक्यूपाइज तिब्बत, दैट इंडिया एक्सेप्ट द मैकमोहन लाइन दैट इज प्रपोज बिटवीन द इंडो तिब्बत। सो सो जो इंडिया है मैकमोहन लाइन के
जो हुआ था उसके हिसाब से तवांग पे कंट्रोल किया, ठीक है। तो अब चाइना 1959 में एलएसी प्रपोज किया एंड 1960s में जो जौ इन लाई है वो टेरिटोरियल स्वैप का बात की है, ठीक है, जो इंडिया डिनाई किया और 1962 का वॉर हो गया। तो चाइना इससे तो विड्रॉ हुआ बट यहाँ लद्दाख में अपना जगह रख लिया, ठीक है। स्मॉल में हम लोग वांगडोंग क्राइसिस समझ लेते हैं। वांगडोंग क्राइसिस 1986 में हुआ था क्योंकि ट्रेडिशनली क्या होता है ना कि इंडियन लोग विंटर में बेस छोड़ देते हैं। तो जो आपका मैकमोहन लाइन के साउथ में जो कि इंडियन इंटेलिजेंस जिसको ऑक्यूपाई किया था, तो ये लोग चाइनीज लोग वहाँ पे मूव फॉरवर्ड किए। तो इंडियन इसके रिस्पॉन्स में ऑपरेशन फाल्कन चलाया था। तो थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स डिप्लॉय हुआ। तो एक्सरसाइज चेकर बोर्ड एक्सरसाइज चला जिसमें एयर लैंड कॉम्बैट रेडीनेस दिखाया गया कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग रेडी हैं, एयर रूट से भी लैंड रूट से भी, ठीक है। बट 1962 में जैसे हम लोग तैयार नहीं थे, इस बार हम लोग ग्राउंड नहीं छोड़े और बाय डिप्लोमेटिक रूट्स उसको डाउन किया गया, ठीक है। तो इंडिया चाइना का $100 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है। इस $14 बिलियन बस हम लोग करते हैं बांग्लादेश के साथ, और लाइक वी हैव ट्रेड डिफिसिट ऑफ $100, ठीक है। में एक मेजर पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि जो बॉर्डर विंग होम गार्ड्स है, तो बॉर्डर विंग होम गार्ड्स आप इंटरनल सिक्योरिटी बॉर्डर मैनेजमेंट में लिख सकते हैं कि वी कैन यूज द सन ऑफ सोइल स्ट्रेटजी। सन ऑफ सोइल स्ट्रेटजी क्या है कि जो बॉर्डर विंग होम गार्ड्स है वो अपना बंदा लोग सिविलियन पॉपुलेशन से उठाएंगे। दे आर लाइक द एंसिलरी फोर्स, दे आर नॉट लाइक द यू कैन से डायरेक्ट फाइटिंग फोर्स नहीं है। सो देयर प्राइमरी यूटिलिटी राजस्थान के ऑपरेशन सिंदूर में दिखता है। दे आर लाइक इंफॉर्मेशन कलेक्टर्स। सो द लोकल रेजिडेंट्स जो है वो टेरेन को जानते हैं बेटर देन एनी आउटसाइडर, ठीक है। सो जो 25% का जो ट्रेनिंग और फाइनेंशियल कॉस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करता है, बाकी स्टेट फंडेड है, जो कि एक इशू है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा चीज जो समझना है हम लोग को वो है माउंट कैलाश और लेक मानसरोवर। तो अराउंड माउंट कैलाश साढ़े छः 4,600 मीटर है। तो मानसरोवर से चार नदी निकलता है भैया। सिंधु नदी, सतलज नदी, इस साइड आपका करनाली रिवर है, और एक आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। चार ओरिजिन मानसरोवर से निकलता है, ठीक है। लीपू लेक पास आपको समझना होगा। तो आपको मानसरोवर जाने का क्या रास्ता है? तो लीपू लेक पास के थ्रू उत्तराखंड होते हुए डायरेक्ट रूट है, ठीक है। तो वो काला पानी लिम्पिया धुरिया वाला रीजन पे है जो कि नेपाल बोरा मेरा है, ठीक है। दूसरा है आप या नाथुला के थ्रू जा सकते हैं। ये मोटरेबल पास है, नाथुला आपका हाईएस्ट मोटरेबल पास है, बट ये 1500 किलोमीटर का ज़्यादा जर्नी होगा थ्रू नाथुला, ठीक है। मानसरोवर इज मोस्ट फेमस, वहाँ पे और भी लेक है, ओजस डेल सलाडो क्रेटर लेक है, ठीक है। वर्ल्ड हाईएस्ट मानसरोवर जो लेक है हाईएस्ट लेक नहीं है। ओजस डेल सलाडो जो क्रेटर लेक है आपका अर्जेंटीना में, वो आपका हाईएस्ट लेक है। तिब्बत का जो चांगसे पुल है वो अ, आपका मानसरोवर से भी हायर है, बट सीजनल है, ठीक है। अब कुछ को समझिए कि जो आईटीबीपी है 3,488 किलोमीटर पे इंटायर गार्ड करता है, एंड इट इज ओनली फोर्स ऑथराइज्ड टू पेट्रोल द एलएसी। तो आईटीबीपी प्राइमरी गार्डिंग फोर्स है, बट इंडियन आर्मी उसके पीछे डिप्लॉय होता है एंड टेक्स ओवर ड्यूरिंग स्टैंड ऑफ। मतलब ये तो बात भी है ना, वो लाइक दे बॉर्डर पुलिसिंग फोर्स है वो सब, ठीक है। दे आर नॉट लाइक ड्यूरिंग द बैटल और ड्यूरिंग द स्टैंड ऑफ वहाँ नहीं होंगे। तो बेसिकली दे गार्ड्स द चाइनीज बॉर्डर, ओके। तो और जो आपका बॉर्डर विंग्स होम गार्ड्स हैं, दे आर लाइक एंसिलरी फोर्स, ओके। Now the second thing is the buffer zone in the Ladakh area where only Indian troops are permitted to patrol to maintain peace. तो ऐसा नहीं है, बफर जोन्स आर लाइक नो पेट्रोल जोन्स, जहाँ नाइदर चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स इंटर करेगा तो फिजिकल फेस ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो इस बफर जोन के चक्कर में इंडिया का 26 पेट्रोलिंग स्टेशन चला गया है, ठीक है। मैकमोहन लाइन का लीगलिटी क्या है? मैकमोहन लाइन एक ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट था ब्रिटिश का, चाइनीज का और तिब्बतन का इन 1914। चाइना इनिशिएट किया था बेटा, बट साइन करने से रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। तो फाइनल सिमला अकॉर्ड। तो
इंडिया बोलता है कि भाई ये तो मेरा लीगल बॉर्डर है, पर चाइना बोल रहा है कि नहीं, इट्स ए कॉलोनियल इम्पोजिशन, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ सिविलियन, तब हम लोग जब बात करते हैं कि जो बॉर्डर विंग्स होम गार्ड्स बनाएंगे, उससे मतलब क्या, बॉर्डर पॉपुलेशन को एक्टिव सेंटिनल्स बना रहे हैं, ठीक है। इससे हम लोग का ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ेगा और सिविलियन को फ्रंट लाइन ऑफ द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में ला देगा, बट ठीक है। दूसरा है सप्लाई चेन का वेपनाइजेशन, जैसे चाइना एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया टू इंडियाज ऑटोमोटिव सेक्टर, टेक सेक्टर, तो ये इकोनॉमिक वॉरफेयर एक नया तरीका है ऑफ बॉर्डर स्टैंड ऑफ, ठीक है। तीसरा है आपका नेपाल फैक्टर, तो जो लीपुर लेक रूट है, जो कि लिम्पिया धुरिया वाला एरिया में आ रहा है, कि नेपाल, इससे पता चला है कि इंडिया चाइना बॉर्डर इशू अब बायलेटरल नहीं रहा, अब ट्राइलेटरल हो रहा है, कि नेपाल भी पूरा हम भी हैं। तो इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा है, ठीक है। क्या बात हो रहा है कि जो बॉर्डर विंग होमगार्ड्स है अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज ए मूव टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट। तो हम लोग बोलेंगे कि भैया जो चाइनीज बॉर्डर है दैट इज अराउंड 3488 किलोमीटर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोल रहा है कि भैया हम लोग बॉर्डर विंग होमगार्ड्स को रखेंगे, ये कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस होगा और एंसिलरी सपोर्ट देगा। सबसे पहले क्या होगा कि जो लोकल नॉलेज को इंस्टीट्यूशनलाइज होगा ये चीज़, फोर्स मल्टीप्लायर होगा, ठीक है। लो इंटेंसिटी सिक्योरिटी टास्क है, तो जो जो स्पेशलाइज्ड फोर्स है उसको कॉम्बैट रोल में फोकस किया जाएगा, ठीक है। बट फंडिंग का दिक्कत है, सिविलियन टारगेट में आ जाएगा, ये जो दिक्कत है, ठीक है। तो एक्टिव विजिलेंस के लिए ज़रूरी है, बट ज़्यादा अच्छा इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट तब होगा जब वी दे मस्ट बी इक्विप्ड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि जो 25% एरिया जो हम लोग कवर नहीं कर पा रहे ईस्टर्न लद्दाख में, वो भी कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं अबाउट द दलाई लामा सक्सेशन। तो दलाई लामा का 90th बर्थडे में जो 14th जो दलाई लामा है वो एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आई विल बी री इनकारनेटेड, एंड दी जो धर्मशाला होगा, जो उनका गेडेन फोड्रोंग ट्रस्ट है, ठीक है। तो चाइनीज गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं है। क्यों चाइनीज गवर्नमेंट का अथॉरिटी का बात करें, वो देखते हैं हम लोग। तो आ, वो बोला गया है कि जो सक्सेसर है वो फ्री वर्ल्ड में होगा, आउटसाइड चाइना होगा। चाइना बोल रहा है कि नहीं, उन लोग जो किंग डायनेस्टी के समय एक गोल्डन अर्न मेथड चलता था कि जो दलाई लामा का जो सक्सेसर है दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो टुल्कू कॉन्सेप्ट है कि जो बुद्धिस्ट जो तिब्बत का जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो लोग रीइंकारनेट होंगे फॉर कंटिन्यूइंग देयर वर्क, ठीक है। तो गेडेन फेड्रोंग क्या है? गेडेन फेड्रोंग जो है वो आपका अ, दलाई लामा का रेजिडेंस है ड्रेपोंग मोनेस्ट्री में। तो ड्रेपोंग मोनेस्ट्री आपका तिब्बत में था, तो तिब्बत से दलाई लामा आ गए थे, तो जो धर्मशाला में है उसको अब क्योंकि वो उसका रेजिडेंस है तो गेडेन फोड्रोंग बोला जाता है, क्योंकि 1959 में दलाई लामा वहां से चाइना से इंडिया आ गए थे, ठीक है। पंसिल जब एग्रीमेंट हुआ 1954 में, तो क्या हुआ कि इंडिया तिब्बत को रिकॉग्नाइज किया कि वो चाइना का हिस्सा है, ठीक है। अब तवांग पे अरुणाचल का क्या क्लेम देता है चाइना, कि तवांग जो है जो सिक्स दलाई लामा है उसका बर्थ प्लेस है, ठीक है। अब क्योंकि दलाई लामा चाइनीज बोला जाता है कि वो चाइनीज कल्चरल के अनुसार वो लोग बोल रहे हैं कि वो उसका क्लेम मार रहा है, ठीक है। जो सक्सेसर है दलाई लामा का मस्ट बी ऑफ तिब्बतन नेशनैलिटी टू मेंटेन द इंस्टीट्यूशन का लेजिटिमेसी। तो ये बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो तिब्बतन कोई भी जेंडर का हो सकता है, कोई भी नेशनैलिटी का हो सकता है, बट ट्रेडिशनल मेथड से रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। गोल्डन अर्ड मेथड जो है वो एक तरह से इंपीरियल डिक्री है किंग डायनेस्टी का, ठीक है। वो बहुत जन तिब्बतन लोग देखता है कि ये पॉलिटिकल कंट्रोल करने के लिए, कोई स्पिरिचुअल ट्रेडिशन नहीं है, ठीक है। दूसरा है इंडिया ताइवान का रिलेशन के बात में हो रहा है, वन चाइना पॉलिसी के बात में हो रहा है, ठीक है। इंडिया कभी फॉर्मली अफर्म नहीं किया है कि देयर इज ए वन चाइना पॉलिसी इन ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट, ठीक है। बट जो ताइवान के साथ उसका एंगेजमेंट है वो बहुत सारे इकोनॉमिक सेक्टर में है, ठीक है। अब इंडिया चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 12.5 बिलियन डॉलर का है, ठीक है। इंडिया इंडिया ताइपाई एसोसिएशन है, उसके थ्रू अपना डिप्लोमेटिक टाइज भी रख रहा है, ठीक है। ताइवान जो है जो टीईसीसी है न्यू दिल्ली और चेन्नई में, ठीक है। और निनाद देश पांडे न्यू डायरेक्टर जनरल है आईटीए का। तो एम्बेसी नहीं है, यू कैन से इंडिया ताइपे एसोसिएशन करके है, डिफेक्टो एम्बेसी है, ठीक है। और ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर है, दैट इज इन इंडिया में, दो जगह है, दिल्ली और चाइना में, ठीक है।
तो विकसित भारत जब हम 2047 का बात करते हैं तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और जो ताइवान जो है टीएसएमसी, जो ताइवान सेमीकंडक्टर जो कंपनी है उसका, वो चिप मेकिंग का लायन शेयर है। तो उनके साथ पार्टनरशिप करना, एजुकेशनल एक्सचेंज करना, सप्लाई चेन बनाना बहुत ज़रूरी है टू मेक फॉर द सप्लाई चेन रेजिलियंस। ठीक है। चाइना का डेमोग्राफी का बात हो रहा है कि जो 2024 से 2025 में 17% श्रिंक हो गया पॉपुलेशन। इट्स अराउंड 7.92 मिलियन बर्थ। ठीक है। तो चाइना का जो फर्टिलिटी रेट है 1 से नीचे आ गया है। तो जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1 का, उसके नीचे हो गया है। ठीक है। तो चाइना नेशन वाइड चाइल्ड केयर सब्सिडी निकाल दिया है। ठीक है। तो बर्थ फ्रेंडली सोसाइटी बनाने का बाय 2031। ठीक है। जो आउट ऑफ पॉकेट प्रेगनेंसी कॉस्ट होगा चाइनीज बियर करेगा। तो ठीक है। तो आप चाइना और देखिए, एज का क्या पता। जैसे कि मान लीजिए चाइना को अगर हम लोग देखें कि जहां चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था ड्यूरिंग 1980 टू 2015। ठीक है। तो इंडिया अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ हम लोग देख सकते हैं उसको कि चाइना अपना सिल्वर इकोनॉमी बिल्ड कर रहा है। पर इंडिया का जो चैलेंज है वो है अबाउट स्किलिंग इट्स यूथ। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि चाइना, व्हाई इट इज चाइना मूविंग टुवर्ड्स मोर ऑटोमेशन, मोर एआई, बिकॉज इट इज देयर सर्वाइवल नेसेसिटी कि उनका लेबर फोर्स श्रिंक हो रहा है। बट उसका देखा देखी अगर हम लोग करें तो वी नीड टू फाइंड आउट अ डिफरेंट अप्रोच, ये बोलने का मतलब है। ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पंसील एग्रीमेंट में है कि 1954 में साइन हुआ था। पहला स्टेटमेंट ट्रू है। 1954 में साइन हुआ था। हाँ, इट फॉर्मली रिकॉग्नाइज तिब्बत ना, ये गलत है। ठीक है। ये आपका वन ओनली होगा। ठीक है। आपका तिब्बत को पंसील कब हुआ था? 1954 में ही ना। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है। भैया कुछ कुछ समझ लेते हैं चाइना के साथ क्या हो रहा है अपना। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र पे जो चाइना मेडोक डैम बना रहा है, मेडोक डैम, तो ये एक वाटर बॉम्ब है। ठीक है। अब ये ऑफिशियल स्टार्ट हो रहा है। लाइक हेवी प्रोजेक्ट, लाइक 60 गीगावाट बना रहा है। लाइक 60,000 मेगावाट मेगा डैम है। जो उसका थ्री गॉर्जियस डैम है जो हाईएस्ट है, उसका ट्रिपल कैपेसिटी है। जहाँ पे यारलुंग ज़ांगपो नामचा बरवा में बेंड खाता है, वहाँ पे अ, और जो यारलुंग ज़ांगपो से सियांग रिवर बनता है। तो चाइना का जो डैम का डिज़ाइन है दैट इज़ रन ऑफ द रिवर डिज़ाइन। बट जो इंडिया का डैम है वो रिजर्वोयर टाइप का है। वो क्या करेगा, सारा सडन रिलीज को एब्जॉर्ब कर लेगा, पहला चीज। दूसरा, चाइना जो जिनजियांग से, उसका जिनजियांग प्रोविंस है जो उसका नॉर्थ वेस्ट में है, जो उसका जीजिंग प्रोविंस है, जो उसको तिब्बत वाला प्रोविंस को लोग जीजिंग बोलता है। ठीक है। तो अक्साई चीन से गुजरेगा थ्रू पैरेलल टू पैंगोंग सो लेक, ये बात है। तो चाइना का गो वेस्ट स्ट्रेटेजी है। ठीक है। गो वेस्ट स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि भाई जो आपका जो आर्मी है वो इधर उधर जा सके। ठीक है। जो रोड ओनली ट्रांसपोर्ट है उसको वल्नरेबिलिटी है इसके लिए। ठीक है। ये कर सकता है कि माइग्रेशन ऑफ हान चाइनीज इनटू रेस्टिव ऑटोनोमस रीजन ऑफ जिनजियांग एंड, मतलब आपको ये देखना होगा कि जो आपका जो उइघुर मुस्लिम है जिनजियांग प्रोविंस में, दे आर उइघुर मुस्लिम आर मेजोरिटी, एंड इन द तिब्बत प्रोविंस दे आर द बुद्धिस्ट आर मेजोरिटी। सो चाइनीज को इधर उधर माइग्रेट कराना। तो जो हान चाइनीज दे आर द ईस्टर्न ईस्टर्न वाले लोग। ठीक है। तो चाइनीज का पुलिसिंग फ्रेमवर्क है कि जॉइंट पेट्रोल स्टार्ट कर रहा है चाइना विथ वेरियस यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है। तो इटली मना कर दिया है, सर्बिया, हंगरी, बहुत सारे देश के साथ कर रहा है। मेरे को जानने वाला बात नहीं है। ट्रेड वॉर की बात करें तो जैसे यूएस इंडिया पे 50% टैरिफ लगाया, बट चाइना को 90 दिन का मोरेटोरियम दिया। ठीक है। तो यूएस का जो टैरिफ की वजह से इंडिया यू के साथ एफटीए साइन किया। ठीक है। देख रहा है कितना बहुत स्ट्रैटेजिकली हो रहा है, विच वाज कंक्लूडेड इज द मदर ऑफ ऑल डील्स। तो रेयर अर्थ का चाइना जो है गैलियम जर्मेनियम उसको स्लो कर रहा है ताकि इंडिया का जो ईवी सेमीकंडक्टर सेक्टर है वो स्लो हो। ठीक है। तो इंडिया हैज ऑफिशियली रिफॉर्म्ड वन चाइना पॉलिसी इन एवरी जॉइंट स्टेटमेंट ना, वन चाइना पॉलिसी नहीं बोल रहा है इंडिया, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी रख रहा है। ठीक है। क्योंकि चाइना जो है स्टेपल वीजा दे रहा है अरुणाचल और जम्मू कश्मीर में। ठीक है। ये पहला चीज। दूसरा है हम्बन टोटा का ओनरशिप की 99 साल का लीज पे ले लिया है श्रीलंका से, जो उसका मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग है 85% स्टेक रख रहा है। ठीक है। जिनजियांग जो है लार्जेस्ट ऑटोनोमस रीजन है ऑफ चाइना। ठीक है। लार्जेस्ट ऑटोनोमस रीजन है चाइना का।
और बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान के साथ, ठीक है, जिनजियांग। 8 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और फिर आपको ये समझना होगा कि जो लैटिन अमेरिका की बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं, आपको समझना होगा कि चाइनीज़ जो है यूएस को छोड़ के ये सब का सबसे बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर बन गया है। अ, टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया चाइना अराउंड 157 कंट्री का, ये चीज़ देखना होगा। तो बायलैटरल ट्रेड जो है इंडिया का ही अब 138.46 बिलियन डॉलर है, जिसमें 100 बिलियन डॉलर का तो अपना ये है ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है। तो इंडियन डेफिसिट इंडियन इनको भी एक चीज़ जो नुआंस पॉइंट है वो बताया कि भैया जो चाइना पहले 2013 तक पैसा देता था, ठीक है, आप 2000 से 2023 तक का बात देखिएगा तो दैट चाइना ग्रांट या लोन के बेसिस पे 2 ट्रिलियन डॉलर बांट चुका है। अब जो 2013 तक का उसका स्ट्रेटेजी था कि वो जो लीस्ट डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत इन्वेस्ट करेगा। बट 2013 के बाद वो अब इन्वेस्टमेंट चेंज कर दिया है, वो डेवलप्ड कंट्री में कर रहा है ताकि बाद में उसको कमर्शियल लेंडिंग मिल सके डेवलप्ड कंट्री से। तो आप देखिएगा कि अब चाइना का अधिकतर इन्वेस्टमेंट इन यूएस है, दूसरा रसिया में है और आपका एक ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस तरह से चाइना अब काम कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी सेक्टर में इंडियन एंटिटीज, एनर्जी सेक्टर में, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, आपको ये देखना होगा, ठीक है, ये सब है। और समझने वाला इसमें क्या बात है, ठीक है, डन डन है जी चाइना तक।